Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. This reading is about the fourth quarter of 2024. This is the last quarter of course. October, November, December. ये जो 3 महीने हैं आपके कैसे रहने वाले हैं? What are you doing in these 3 months? How life is treating you? What is happening for you? And what kind of things you're involved in? क्या चीज़ें हो रही है इन द फोर्थ क्वार्टर द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2024 इस बारे में ये रीडिंग है. लेट्स गेट स्टार्टेड with your astrology tarot prediction. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are going to have 3 piles. So you have to pick your pile according to your date of birth. Pile number 1 जो है it's of Sattvic sign. So अगर आपका बर्थडे कैंसर, लियो, सेजिटेरियस, स्पाइसी साइन के सीजन्स इस साइन के सीजन में से किसी एक सीजन में आता है, पिक पाइल नंबर 1. अगर आपका बर्थडे एरीज, टॉरस, जेमिनी या फिर लिब्रा साइन के किसी एक साइन के सीजन में आता है, देन पिक पाइल नंबर 2 बिकॉज this pile number 2 is the Rajasic sign pile. Pile number 3 is the Tamasic sign pile. So if your birthday comes in Virgo, Scorpio, Capricorn or Aquarius season, pick pile number 3. All right. So description में details हैं, टाइम स्टैम्प है, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो, अपनी रीडिंग सुनो और देखो. तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑल राइट. Hello pile number 1. So this is your reading. You chose this pile because आपका बर्थडे सात्विक साइंस वाले सीजन्स में से किसी एक सीजन में आता है. So let's get started. Your life in the fourth quarter of 2024. I should start with some first let's start with some oracle deck, oracle cards. So pile number 1, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो लास्ट 3 मंथ्स है 2024 के कैसे रहते हैं पाइल नंबर 1 के. पाइल नंबर लाइव्स इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2024. व्हाट कैन दे एक्सपेक्ट, व्हाट आर दे डूइंग, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दे आर इन्वॉल्व्ड इन. So we have angel numbers confirmation. You're going to see that there are a lot of angel number coming to you. जैसे 272, जैसे 1212, जैसे 1111. So you guys will see a lot of synchronicities. You guys are going to see कि आपके फ़ोन पर, आपके वॉल क्लॉक पर, आपके रिस्ट वॉच पर repeating numbers you're going to see. And those repeating numbers are the confirmation that you are on the right path. But at the same time वो कुछ specific messages भी होंगे. But I do feel that this is a confirmation for you that you are doing the right thing. So आप guilty conscious मत हो, you are doing the right thing, you're behaving the right manner. एंड आप बहुत कॉन्शियस होते हुए नज़र आ रहे हो चीज़ों के सराउंडिंग की. आप बहुत एक अच्छे ऑब्जर्वर नज़र आ रहे हो. इफ़ यू आर ऑब्जर्विंग एंजल नंबर्स देन यू आर अ वेरी गुड ऑब्जर्वर. यू आर ऑब्जर्विंग एवरीथिंग. आप सभी का चाल चलन देख रहे हो, सभी चीज़ों को परख रहे हो और राइट डिसीजन ही लोगे. ये एंजल नंबर शो करते हैं. ये कन्फर्मेशन है दैट यू आर वॉकिंग ऑन द राइट पाथ. सो कैन सी लॉट ऑफ एंजल नंबर्स इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में. And then we have peace. It says harmony. You will find peace of mind in the next 3 months. Somehow you will notice that life is good. Life is worth living. You will feel like कि life ना अच्छी चल रही है, harmonious चल रही है. Life में एक sense of peace है, एक शांति है, एक सुकून है, वो आपको ज़रूर महसूस होगा. Maybe past few months or weeks have been quite busy for you, whatever the reason is. But October, November, December, ये 3 month still एक peaceful time होगा आपके लिए. Then we have the dice. It says chance. So I see that your luck is on your side. If you play, let's say Ludo, if you play again जहाँ पर luck चाहिए, ऐसी games अगर आप खेलो तो there are high chances that you win it. Even Monopoly etc. जो भी games है, board games है, there are high chances that you win these games, whether it's Scrabbles as well. You somehow win the board games. You will notice कि आपका लक ज़्यादा आपका साथ दे रहा है. In fact ये जो next 3 months है, you should also, you can, all right, many of you or some of you can win a lottery in the next 3 months. I'm not saying कि कोई बहुत बड़ी लॉटरी आप जीत लो, but if you try, yes, you can win a lottery. All right, I'm not saying that invest a lot of money somewhere. No, I'm just saying that there can be some lottery coming in for you. And also you are much luckier than other people around you. So जैसे
इट शोज कि भाई यू शुड ट्राई योर लक इन समथिंग. कोई ऐसी चीज़ जहाँ पर आपको लगता है ना कि यहाँ हार्ड वर्क नहीं, यहाँ लक की ज़रूरत है, आपको ऐसी चीज़ ज़रूर करनी चाहिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर इन 3 महीनों में 2024 के. यू शुड, क्योंकि आप देखोगे कि आपका लक आपका साथ दे रहा है. यू आर लकी. सो जो आप वो लक वाली चीज़ आप खेलते हो या कुछ जहाँ पर आपको लगता है कि मेरा लक ज़्यादा रिक्वायर्ड है, तो वो चीज़ जब आप करते हो तो यू विल नोटिस कि यू आर लकी. वो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो रही है, उस चीज़ से आपको कुछ वैल्यूएबल मिल रहा है. सो विल नोटिस दिस. You seem to be quite lucky. Then we have the 5th house. 5th house literally is a house of Purva Punya, is a house of your good deeds which you have done in your past lives. So as we were talking about कि लॉटरी जीतना या फिर कुछ जहाँ पर लक चाहिए वहाँ आप काम करते हो या वहाँ पर आप एफर्ट डालते हो, तो सडनली वहाँ से आपको गेन आता है. क्योंकि 5th हाउस बहुत एक्टिव है, आपके पास्ट लाइफ के गुड कर्मास बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और जो पास्ट लाइफ में गुड कर्मास करे उसका रिजल्ट आपको लास्ट क्वार्टर ऑफ 2024 में मिलता हुआ नज़र आ रहा है. लाइक 5th हाउस रिप्रेजेंट्स हाई. वैसे 5th हाउस हायर एजुकेशन नहीं शो करता, बट यहाँ लिखा हुआ है, बट ओके. 9th हाउस हायर एजुकेशन शो करता है, बट 5th हाउस एजुकेशन बिफोर ग्रेजुएशन शो करता है. इट शोज इट सेज क्रिएटिविटी, लवर्स, आर्टिस्ट्री, इंटेलिजेंस, स्पेक्यूलेशन, रॉयल्टी. अगेन स्पेक्यूलेटिव गेन्स एज वी वर टॉकिंग अबाउट की लॉटरी या स्टॉक्स. These are speculative gains. Stock market is speculative gains. So definitely अगर आप stock में invest करो, there are high chances that you become lucky and you get a lot of money from there. So if you guys are someone who invests in stock, yes you should, and you will notice दैट आपको बहुत अच्छा मनी उस स्पेकुलेटिव गेन से आ रहा है. अगेन करियर आपका कुछ और हो सकता है. ऑलराइट, आई एम नॉट सेइंग कि आपको स्पेकुलेटिव गेन्स में ही अपना करियर बनाना चाहिए. आई एम नॉट सेइंग दैट, बट व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि नवंबर दिसंबर में लक आपका बहुत साथ देगा, इस वजह से स्पेकुलेटिव गेन्स आपको होंगे. स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, दैट कैन हैपन. 5th हाउस शोज रॉयल्टी, मंत्रास, एंटरटेनमेंट. सो येस 5th हाउस परफॉर्मिंग आर्ट्स को शो करता है. सो यू कैन परफॉर्म समथिंग, यू गाइज कैन परफॉर्म समथिंग ऑन एन एलिवेटेड प्लेटफॉर्म वेयर पीपल कैन एडमायर यू. आप में से काफ़ी सारे लोग अगर यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर अपना कंटेंट पोस्ट करते हैं, बिकॉज अगेन ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, 5th हाउस प्लेटफॉर्म को रिप्रेजेंट करता है. तो मतलब जब आप इन प्लेटफॉर्म्स पर अपना कंटेंट क्रिएट करते हो, तो गोना बी लॉट ऑफ पीपल हु गोना वॉच यू एंड सडनली आपके जो व्यूज़ है वो अप जाते हैं. और एट द सेम टाइम आई फील मैनी ऑफ यू कैन बी आर्टिस्ट, मैनी ऑफ यू कैन डू एक्टिंग और सिंगिंग, एंड और somehow pile number 1 you get the chance to be on a stage, to be on a platform. तो ऐसा चांस मिस नहीं करना चाहिए. बाकी आप करते हुए नज़र आ रहे हो, मतलब 5th हाउस परफॉर्मेंस को शो करता है, आप कुछ परफॉर्म ज़रूर करते हुए नज़र आ रहे हो इन अक्टूबर नवंबर दिसंबर मंथ्स. यू आर परफॉर्मिंग समथिंग, प्लस आप बहुत क्रिएटिव नज़र आ रहे हो. क्रिएटिविटी सडनली आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. किसी चीज़ को सुंदर दिखाना, किसी चीज़ को डेकोरेट करना, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ आपके अंदर बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है. 5th हाउस चिल्ड्रन का भी है. सो इफ़ सम ऑफ यू वांट्स टू कंसीव, देन येस अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 3 मंथ जो है कंसेप्शन के लिए बहुत अच्छे नज़र आ रही है. यू कैन कंसीव. 5th हाउस इज ऑफ चिल्ड्रन, बट ऑल्सो शोज इफ़ यू ऑलरेडी हैव चिल्ड्रन, पाइल नंबर 1, देन इट कैन हैपन कि आप अपने चिल्ड्रन पर बहुत ज़्यादा फोकस हो. 5th हाउस चिल्ड्रन का है, तो चिल्ड्रन पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, उनकी एजुकेशन पर आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो. इफ़ यू आर अ स्टूडेंट वॉचिंग दिस रीडिंग, तो आप अपनी खुद की एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड होगे और अपना आराम से पढ़ पाओगे और चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाओगे. ऑलराइट, तो ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही है. इफ़ यू आर समवन हु इज़ ऑलरेडी इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, देन येस 5th हाउस लव रोमांस को शो करता है. सो येस वी कैन से दैट लव इज़ इन द एयर फॉर यू. पाइल नंबर 1, love is in the air for you, or able to impress or woo your person. Alright, आपके लाइफ पार्टनर या आपके रोमांटिक पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस रहते हैं. You guys seems to be quite romantic in the next in the coming months, or October, November, December months. You seem to be you guys are able to impress your life partner or your lovers. Then we have autumn card. It says bounty, balance. So October month is of fall, it's of autumn. So yeah, the autumn season is going to be very good for you. Pile number 1, it seems to be quite lucky for you. This autumn 2024 is going to be quite lucky for you. I feel that somehow you will really like the orange rusty colors in this season. All right, many of you can eat pumpkin things related to pumpkin. All right, and yeah, many of you can also be very much interested in Halloween and all these things which
वाला जो वी कैन से एस्थेटिक होता है, विच वाला एस्थेटिक, you will like that a lot. And with the balance and bounty card here, it shows that you will feel कि हाँ लाइफ में एक बैलेंस है, लाइफ में अगेन एक वो पीस है, एक हारमनी है, वो आप ज़रूर महसूस करोगे इन द लास्ट months of 2024. I feel this card wants to come out. So we have the walking stuff. It says support, encouragement. So there are going to be people who are going to encourage you to do something. And I feel that you are also going to support and encourage other people. We see a rosary here. So somehow many of you are also quite spiritual or religious in nature in the last quarter of 2024. And we see a path here. और इस path पे सीधा सीधा चलेंगे तो बढ़िया है, अगर इधर उधर हो जाएंगे तो गिर भी सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर कोई ऐसा जगह नहीं है खड़े होने की, गिर ही जाएंगे. सो यहाँ पर वॉकिंग स्टाफ यही शो कर रहा है दैट इट्स नाउ और नेवर काइंड ऑफ सिचुएशन. कुछ ऐसा हो सकता है कि जहाँ पर नाउ और नेवर वाली सिचुएशन ही है, अभी नहीं तो कभी नहीं, तो ऐसी सिचुएशंस में आप हो सकते हैं. यू शुड डू व्हाट नीड्स टू बी डन, क्योंकि अगर अभी नहीं करोगे तो फिर वो मौका कभी नहीं आएगा. सो कुछ ऐसा सिचुएशन है और आप वो मौका गवाओगे नहीं और आप चलोगे उस रास्ते पर और उस किसी चीज़ को अचीव कर पाओगे, ये नज़र आ रहा है. एंड यू विल फाइंड सपोर्ट. You will definitely find support from your co-workers or from your classmates or your teachers or somehow from your mentors. You will find support from your parents. Somewhere you will definitely find great support और encourage करेंगे वो लोग आपको किसी चीज़ को पाने के लिए. Also this card shows कि आप दूसरों को भी support करोगे, आप दूसरों को भी encourage करोगे. You are spreading positivity as well. 5th house का कार्ड है तो luck is on your side, pile number 1. तो आप जो करना चाहते हो ना, करो उस चीज़ को. एंजल नंबर्स भी आपको बार बार यही गाइड करेंगे कि जिस पाथ पर आप चल रहे हो ना वो बिल्कुल सही है, आप उधर एफर्ट डालो, आप हटो मत रास्ते से, अपना काम मत छोड़ो, जो आप कर रहे हो कीप ऑन डूइंग इट. बार बार वो एंजल नंबर्स भी आपको इसी वजह से दिखेंगे. डाइस कार्ड है, चांस कार्ड है, और यहाँ पर भी यही चीज़ नज़र आ रही है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अब भी चांस मिल रहा है आपको. इस 4th क्वार्टर ऑफ 2024 में आपको चांस मिल रहा है टू अचीव समथिंग, टू डू समथिंग, और फिर ये अपॉर्चुनिटी आपके पास कभी नहीं आएगी. सो यू शुड पुट योर एफर्ट्स इन दिस थिंग एंड यू विल विन एज वेल. यू विल विन. आप लकी हो तो आपके लक के कारण और आपके एफर्ट्स के कारण आप कोई चीज़ जीत सकते हो, कोई वैल्यूएबल चीज़ आपके हाथ लग सकते हैं. स्पेक्युलेटिव गेन, स्टॉक मार्केट और लॉटरी, समथिंग यू आर विनिंग फॉर श्योर, जहाँ लक की भी ज़रूरत है और शायद एफर्ट्स की भी कहीं ना कहीं ज़रूरत है. ये कर्म प्रधान दुनिया, यहाँ कर्म के बेसिस पर फल की प्राप्ति है. तो अगर आप सोचो कि ये मेरे सामने ना खाने की प्लेट रखी हुई है, अगर किस्मत में हुआ तो ये खाना मेरे मुँह में आ जाएगा, ऐसा तो नहीं है. खुद रोटी तोड़कर जो है अपने मुंह में डालनी पड़ेगी ना, तभी वो आएगी ना. तो इसी तरह कर्म प्रधान दुनिया, कर्म करने पर फल की प्राप्ति है. तो कर्म करो और लक आपके साथ है तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी जो आप अचीव करना चाहते हो. ऐसे स्पेक्युलेटिव गेन्स और अनएक्सपेक्टेड मनी, लॉटरी, यू कैन विन दीज थिंग्स इन द नेक्स्ट 3 months, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में. अक्टूबर तो खैर आ ही गया. सो लेट्स पुल सम स्पेसिफिक कार्ड्स about your career. पायल नंबर 1 का करियर, एजुकेशन, जॉब, बिजनेस, जिस भी स्टेज ऑफ लाइफ पर हैं पायल नंबर 1, उनका करियर कैसा है in the last quarter of 2024. So we have King of Wands. King of Wands here does show that you have leadership qualities within you and you will get a leadership position for sure. कुछ ऐसा करियर में आप देखोगे जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट होगे और दूसरे लोग देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो इस चीज़ को लेकर. सो दे गिव यू दिस अपॉर्चुनिटी और दे समहाउ फील कि भाई आप अगर लीड करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि उनको दूसरों को भी लगता है कि आपका इस चीज़ में, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपकी महारत हासिल है. तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगा अपने करियर में जहाँ पर दूसरे लोग चाहेंगे कि आप उनको लीड करो, आप उनको गाइड करो, क्योंकि उनको लगता है कि आप बहुत एंथुजियास्टिक हो इस चीज़ के लिए, आपके पास बहुत नॉलेज है इस चीज़ के बारे में. सो दूसरे लोग साइड हो जाते हैं और आपको जगह देते हैं और आप उनको लीड करते हो. तो कुछ लीडरशिप पोजीशन आपको मिल सकती है. अगर आप स्कूल कॉलेज में भी हो, पढ़ते हो, स्टूडेंट हो, तो एज अ स्टूडेंट भी आपके पास ऐसा अपॉर्चुनिटी आएगा जहाँ पर यू कैन बी इन अ ग्रुप काइंड ऑफ सिचुएशन एंड यू बिकम द लीडर ऑफ दैट ग्रुप. अगर आप जॉब काइंड ऑफ सिचुएशन में तो यू बिकम द प्रोजेक्ट हेड. अगर आप बिजनेस में हो तो बिजनेस में समहाउ आप
कोई चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा पैशनेट हो सकते हो और उस चीज़ को लीड करो, उस प्रोजेक्ट को अगेन लीड करो, ये यहाँ पर शो हो रहा है। अब अपना दिन रात एक करके हार्डवर्क करो, एफर्ट करो, दिल लगा कर काम करो, और जहाँ पर हम दिल लगा कर काम करते हैं उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप अपने करियर में दिल लगा कर काम करो, सो दैट्स ब्यूटिफुल, दैट्स ग्रेट। एंड सम ऑफ यू आर ऑल्सो प्लानिंग टू ट्रैवल और प्लानिंग टू चेंज समथिंग इन योर करियर। वो चेंज आप ला पाओगे अपने करियर में in the last quarter of 2024, if you, and many of you can travel in the last quarter of 2024 due to your career, maybe एक country से दूसरी country जाना या एक state से दूसरी state जाना, कुछ ऐसा travel भी होता हुआ नज़र आ रहा है। Many of you may also deal with lot of documents in the last 3 months of 2024, कुछ नहीं, काफ़ी सारे पेपर वर्क या काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स से आपको डील करना पड़े, इसका इंडिकेशन है। अबाउट योर फाइनेंसेस, अगर आप खुद अर्न करते हो तो ये आपके फाइनेंसेस, अगर आप खुद अर्न नहीं करते तो समवन एल्स हु मेक्स मनी एट होम, तो उनके फाइनेंसेस, उनके मनी के बारे में इंफॉर्मेशन है। सो वी सी द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स हेयर शोज मी दैट सम ऑफ यू हैव न्यू आइडियाज़ टू इन्वेस्ट योर मनी। कहीं ना कहीं आप किन्हीं करेंसीज में इन्वेस्ट कर रहे हो या स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, डिफरेंट काइंड ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो या IPOs में इन्वेस्ट कर रहे हो, लाइक यू आर समवेयर यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी। आपका इन्वेस्टमेंट का स्ट्रैटेजी बदला है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी शो करता है कि देयर इज़ वेस्टफुल स्पेंडिंग एज वेल। वेस्टफुल यानी कि आप दूसरों को शायद बताओ भी ना मैंने ये चीज़ खरीद ली है, बिकॉज यू फील कि फिर ये लोग मुझे जज करेंगे, फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो लेट मी जस्ट कीप थिंग्स टू माई सेल्फ। तो कहीं ना कहीं वेस्टफुल स्पेंडिंग्स भी यहाँ पर नज़र आ रही है। ऑल्दो यू हैव मनी, यू डू हैव मनी, you have quite a lot of amount of money, so that's why आप कोई महंगी चीज़ें खरीद सकते हो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। और आप शायद बताओ ना दूसरों को, एज I've told you, क्योंकि फिर दूसरे लोग आपको जज करते हैं। बट वेस्टफुल स्पेंडिंग है, इट्स देयर वेस्टफुल स्पेंडिंग है, मनी आप स्पेंड कर रहे हो, दैट्स देयर, और वो भी छुप के कर रहे हो। और जो काम छुप के करा जाता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम गलत होता है। सो बी केयरफुल, आप ये चीज़ ध्यान में रखो कि भाई ये चीज़ मेरी नीड है या फिर ये चीज़ मेरी डिज़ायर है, इसके बिना काम चल सकता है कि नहीं चल सकता। अगर चल सकता है तो यानी वो चीज़ आपकी डिज़ायर है, और अगर नहीं चल सकता इस चीज़ के बिना आपका काम, यानी वो आपकी नीड है, नेसेसिटी है। एंड इट कैन इवन हैपन कि शायद वो चीज़ जो आप खरीद रहे हो आपकी नेसेसिटी की चीज़ है, बट दूसरे लोगों के सामने आप वो चीज़ नहीं लेकर आना चाहते, तो कहीं ना कहीं सीक्रेट रखो आप अपनी स्पेंडिंग्स को, ये यहाँ पर शो हो रहा है। या इन्वेस्टमेंट्स को काफ़ी सीक्रेट रखो, आप दूसरों से ज़्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात ना करो। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग अबाउट योर पर्सनल लाइफ, your relationships. So we have the card 9 of cups. 9 of cups here shows कि भाई यहाँ पर आपके जो relationships हैं, you somehow want peace, all right, you want peace, you don't want problems in your life. तो आप झगड़ों में नहीं पड़ते, या आप दूसरों की साइड नहीं लेते, आप अपनी लाइफ में ज़्यादा मस्त और व्यस्त रहते हो, आप अपनी सेटिस्फैक्शन की तरफ ध्यान देते हो, आप दूसरों की लड़ाई में नहीं पड़ते हो। चाहे वो घर पे ही है, आपके पेरेंट्स, लेट्स से आपके मदर फादर एक दूसरे से फाइट एंड आर्ग्यू कर रहे हैं, आप भी उनको कुछ कह सकते हो उस चीज़ में कि भाई मत लड़ो, या ये बात ठीक नहीं, या आप किसी की साइड लो, अपने मदर की साइड लो या फिर अपने फादर की साइड लो, मतलब ऐसा आप कर सकते हो। बट उसके बावजूद आप ये चीज़ें ना करो, आपको लगे ये अपने आप सुलटा लेंगे, मैं अपना देखती हूँ या अपना देखता हूँ, मैं ये लोग जो करना चाहते हैं कर ले, ओके, लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू, आई डोंट वांट बी इन बिटवीन देम। सो कहीं ना कहीं आप पीस ऑफ माइंड को चूज़ करते हो, और आप ज़्यादा ताका जाकी या आप दूसरों की लाइफ में इतना इन्वॉल्व नहीं हो, अपने परिवार की लाइफ में भी एज सच उनके फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स में या फैमिली ड्रामा में इतना इन्वॉल्व नहीं हो। यू चूज़ पीस ऑफ माइंड ओवर ऑल दीज थिंग्स।
ऑलराइट, जो हैप्पी चीज़ है यू इन्वेस्ट योर टाइम देयर। बट जहाँ पर लड़ाई झगड़ा है, जहाँ पर आपको पता है कि कुछ समझाने से किसी को कुछ हासिल नहीं होने वाला, समझाने से समझेंगे नहीं, आप साइड हो जाते हो, आप अपना पीस ऑफ माइंड नहीं वेस्ट करते हो, साइड हो जाते हो, किनारे हो जाते हो। ये चीज़ नज़र आ रही है, दूसरे चाहे कुछ भी लड़ते रहे पर आप किनारे कर लेते हो। इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप और इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड, सो आई स्टिल सी स्पेंडिंग वेरी गुड क्वालिटी टाइम विद योर ओन सेल्फ। आप अपने पार्टनर को स्पेस देते हो, आप अपने आप को स्पेस देते हो, और अपने आपकी पीस ऑफ माइंड को कैसे और मैं इंक्रीज़ करूँ इस चीज़ पर सोचते हो, इस चीज़ पर ध्यान लगाते हो। मैं अपनी लाइफ को और कैसे बेटर बना सकता हूँ या सकती हूँ, इस चीज़ पर आपका फोकस है। आपका एज सच ड्रामा में इन्वॉल्व होना, लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व होना पर्सनल लाइफ में, ये इन्वॉल्वमेंट्स नहीं है इन अक्टूबर नवंबर दिसंबर। दैट्स वाई देयर इज़ द कार्ड ऑफ पीस, हार्मनी, क्योंकि आप दूसरों के साथ इन्वॉल्व नहीं हो। ताली हमेशा दो हाथों से बजती है, ऑलराइट। सो एक हाथ से तो चुटकी बज के रह लेती है, पर ताली का जो आवाज़ है वो ज़्यादा होता है चुटकी से भी, राइट। एक तो ये आवाज़ और एक पूरी ताली की आवाज़ है, क्लैप की आवाज़ है। सो आप अगर डिससेटिस्फाइड हो अपने आप से या कुछ किन्हीं चीज़ों से, तो आप उसे दूसरों से ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हो, आप उसे अपने तक रखते हो। और ये भी चीज़ है, जब हम दूसरों से डिस्कस करने लग जाते हैं तो बात मतलब सोल्यूशन फिर भी शायद ना निकले, पर बात का पतंगड़ बन जाए जिसको हम कहते हैं। सो यू आर कीपिंग थिंग्स टू योर सेल्फ, यू आर बिकमिंग मोर इंट्रोवर्टेड इन टर्म्स ऑफ योर इमोशंस, सो यू फाइंड पीस व्हेन यू आर अलोन। सो ये चीज़ आप करते हो नज़र आ रहे हो। आप ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो अपने रोमांटिक रिलेशनशिप या अपने परिवार के लड़ाई झगड़े में, यू आर नॉट इन्वॉल्व। ऐसा नहीं है कि आप उनसे बात ही नहीं करते, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप अपने परिवार से, अपने रोमांटिक पार्टनर से ज़रूर बात करते हो, पर मैं यहाँ लड़ाई झगड़ा होता हुआ नहीं देख रही, आप किसी लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व हो, ये चीज़ें होती हुई नहीं देख रही। यू आर चूजिंग पीस ओवर एवरीथिंग। So this is what you are doing. If you are not in a relationship, you are not in a romantic relationship, but you want to get in a romantic relationship, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में I don't really see you कमिंग इन अ रिलेशनशिप, बिकॉज आपको ये फील होता है कि जो मेरे आसपास वाले लोग हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं या ऑलरेडी जो एक रोमांटिक रिलेशनशिप में, उनका रिलेशनशिप तो अच्छा चल नहीं रहा है, हस्बैंड वाइफ का या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशन उनका तो अच्छा चल नहीं रहा है, मैं और इसमें पढ़ूँ तो दूसरों की गलतियों से हमें सीखना चाहिए। तो आपका जो फोकस है वो रोमांटिक रिलेशनशिप क्रिएट करने में इतना ज़्यादा नहीं है, आपका फोकस है कि अकेले रहकर हम खुश कैसे रह सकें और अपने आप को सेटिस्फाइड कैसे महसूस करा सके, इस चीज़ पर आपका फोकस रहेगा। एंड अबाउट योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, वैसे मेंटल हेल्थ ऑलरेडी बहुत अच्छी नज़र आ रही है, बट लेट्स पुल अ कार्ड. So we have Ace of Wands. Ace of Wands shows happiness, it shows creativity, it shows मन लगा हुआ है, अपने ही आप में आप बहुत बिजी हो. एस जो होता है वो नंबर 1 को सिग्निफाई करता है. एस एक होता है, तो आप एक पर्सन ही अपनी ही लाइफ में बिजी हो, इन्वॉल्व हो, आप अपनी लाइफ में व्यस्त और मस्त हो, आप अपने प्लान्स में व्यस्त और मस्त हो, अपनी क्रिएटिविटी में, म्यूजिक में, आर्टिस्टिक थिंग्स में, राइटिंग में. मैनी ऑफ यू आर वेरी गुड राइटर्स, मैनी ऑफ यू विल हैव सम स्किल्स ऑफ हैंड्स, मैनी ऑफ यू आर वेरी गुड म्यूजिशियंस, वेरी गुड सिंगर्स, वेरी गुड आर्टिस्ट. सो आप इन्हीं चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व, और ये चीज़ें आपको खुशी देते हैं. इफ़ यू वर डीलिंग विद, आई डोंट नो, लाइक आई जस्ट feel that some of you are dealing with high blood pressure for quite a time, and guidance है कि you should start to color something. बारीक चीज़ों को जब आप कलर करते हो, ऐसी बुक खरीदो या आप ऐसे प्रिंट आउट निकाल सकते हो बारीक चीज़ों के और उसको कलर करो फिर, तो उससे आपका जो है दिमाग की नसें थोड़ी सी ठीक होती है, आपका जो ब्लड फ्लो है वो अच्छा होता है, फिर वो हाई ब्लड प्रेशर से फिर आप नहीं डील करते. बट अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं तो यू शुड इन्वॉल्व योर सेल्फ इन सम क्रिएटिव थिंग्स. ये आपके लिए गाइडेंस है और इससे आपका फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होगा. बट Ace of Wands naturally here is showing a good physical health, a good mental health coming in the months of October, November, December. रीज़न क्या है गुड हेल्थ का, फिजिकल और मेंटल गुड हेल्थ का? रीज़न ये है कि आप अपने आप में बहुत बिजी हो, आप ड्रामाज में नहीं पढ़ते हो, आप
बिकम एक्सट्रीमली बिजी इन आर्टिस्टिक थिंग्स, आप अपने आप को इन्वॉल्व रखते हो, आप अपनी खुशी पर ध्यान देते हो, इस वजह से आपका मेंटल और फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छा है। ये यहाँ पर इंडिकेशन है फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024, लास्ट क्वार्टर ऑफ 2024। आप अपने आप में बहुत इन्वॉल्व हो, अपनी लाइफ में बहुत इन्वॉल्व हो, पीस ऑफ माइंड आप ज़रूर महसूस करोगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर और क्या इंडिकेशन है फ्रॉम दिस Major Arcana deck. So we have Sun, Surya. Again I see balance here. यहाँ पर भी पीस का कार्ड है, यहाँ पर बैलेंस का कार्ड आ गया। सो यू सीम टू बी क्वाइट बैलेंस्ड, आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ काफ़ी बैलेंस्ड नज़र आ रहा है। आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर फोकस कर रहे हो। यहाँ पर भी हम एक पर्सन देख रहे हैं और सन जो है ना सिंगुलर को शो करता है, मरकरी प्लूरल है इन एस्ट्रोलॉजी, सन सिंगुलर है, तो आप सिंगल नज़र आ रहे हो। आप अगेन आपका जो स्टेटस है इट कैन बी सिंगल, और इवन इफ़ यू आर इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप और मैरिड, देन ऑल्सो आप मेंटली कहीं ना कहीं सिंगल हो, बैचलर हो, यू आर फोकसिंग टूवर्ड्स योर ओन हैप्पीनेस, टूवर्ड्स योर स्ट्रेंथ, टूवर्ड्स योर ओन सेल्फ, टूवर्ड्स योर हेल्थ। सन कार्ड यहाँ आपके लिए क्लैरिटी लेकर आ रहा है, किन्हीं चीज़ों को लेकर अगर आप कन्फ्यूज थे तो लास्ट क्वार्टर ऑफ 2024 में यू हैव क्लैरिटी अबाउट दोज थिंग्स। प्लस आप सन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे, प्रैक्टिकल होते हुए नज़र आ रहे हो, मैस्कुलिन थोड़ा ज़्यादा होते हुए नज़र आ रहे हो, बिकॉज अगेन सन मैस्कुलिन एनर्जी को शो करता है, प्रैक्टिकलिटी को शो करता है। तो ये चीज़ें आपके अंदर है, लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके अंदर है, सन लीडर को सिग्निफाई कर रहा है, और यहाँ पर भी किंग ऑफ वॉन्ड्स लीडरशिप क्वालिटीज़ को शो कर रहा है, जो आप अपने करियर में शो करने वाले हो, इम्प्लीमेंट करने वाले हो अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को। ऑल राइट, आपके अंदर एक बैलेंस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। समहाउ यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद सन, यानी कि आप जल्दी उठना शुरू कर दो, आपका स्केड्यूल थोड़ा चेंज हो, आप सच में जल्दी उठ पाओ, आप सनराइज़ या सनसेट ज़रूर देखो, या इनसे बड़ा फैसिनेट हो सनसेट या सनराइज से। रिसेंटली यू गाइज यू नो व्हाट, आई वेंट टू कसौली हिल्स। तो कसौली जो है चंडीगढ़ से 65 किलोमीटर्स ही है, तो हम वहाँ गिलबर्ट ट्रेल पे थे, वहाँ चढ़ रहे थे, और जैसे ही हम पहुँचे वहाँ सनसेट पॉइंट पर, तो उसी टाइम सनसेट होना शुरू हुआ था। मतलब विद इन फ्यू सेकेंड्स आई सॉ कि जैसे सन जो है नीचे चला गया। मैंने आज तक कभी सनसेट नहीं देखा, सनराइज तो देखा है बट सनसेट एज सच मैंने नहीं देखा, या देखा भी हो तो आई वुड हैव बिन अ चाइल्ड, तो मेरे को याद नहीं मैंने कब सनसेट देखा। तो जो सनसेट हो रहा था, इवन तो सनराइज और सनसेट एक जैसा दिख सकता है, बट सनसेट का एक अपना ही कुछ है व्यू तो वो भी हिल स्टेशन पर चढ़ के हम देखें सनसेट, तो उसका एक अलग ही व्यू था। विद इन फ्यू सेकेंड्स वो सन जैसे गायब हो गया। सो दैट वॉज रियली फैसिनेटिंग। आई एम नॉट समवन जो मून से ज़्यादा फैसिनेट होता है, आई एम नॉट समवन जो कहे कि अरे ये चांद बड़ा सुंदर लग रहा है, आई एम नॉट समवन हु गेट फैसिनेटेड विद मून, आई एम समवन हु गॉट फैसिनेटेड विद सन। ऑलराइट, सो यू विल ऑल्सो नोटिस कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जब आप सनराइज या सनसेट देखते हो तो आप देखते ही रह जाते हो, क्योंकि वो व्यू बड़ा ही सुंदर होता है, आपको सन सडनली बहुत अच्छा लगने लग जाता है। सो यू कनेक्ट विद सन मोर इन द अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मंथ। सो आई सी दिस हैपनिंग। ऑल राइट, सो एंड ऑल्सो सन शोज फादर। ऑल राइट, तो सन अगेन जो फादर है उनसे आप काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हो, या किसी फादरली फिगर से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, उनके साथ आपका बड़ा कम्युनिकेशन है। तो ये चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है। ऑल राइट, सो दिस वाज द रीडिंग फॉर यू, पाइल नंबर 1। एस्ट्रोलॉजिकली अगर देखें तो आपका सन आत्मा कार्य का हो सकता है, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज नियरेस्ट टू द 30 डिग्रीज कैन बी सन इन योर चार्ट, और इट कैन इवन बी मार्स, इट कैन इवन बी जुपिटर। और आपके प्लैनेट्स जो हैं वो एरीज, लिब्रा, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, इन साइंस में प्लेस्ड हो सकते हैं, यानी एरीज में अश्विनी, भरिणी, कृतिका, कैंसर में पुनर्वासु, पुष्या, अश्लेषा, फिर लिब्रा में चित्रा, स्वाति, विशाखा, फिर कैप्रिकॉर्न में उत्तरा, आषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा। तो एक केंद्र साइंस है, केंद्र हाउसेस को नेचुरली रूल करते हैं, केंद्र होता है 1, 4, 7, 10। सो इन हाउसेस में, केंद्र हाउसेस में 1, 4, 7, 10 में आपके प्लैनेट्स प्लेस्ड हो सकते हैं। अगेन दीज आर द 1, 4, 7, 10 हाउसेस, ये केंद्र हाउसेस होते हैं। दिस इज़ द मोक्षा ट्राइंगल, 1st, 5th, 9th को मोक्षा ट्राइंगल कहते हैं या ट्राइन्स कहते हैं, बट दिस इज़ द, यहाँ पर
इन 4 हाउसेज में आपके प्लांट ज़रूर प्लेस होंगे इन योर बर्थ चार्ट और इवन इन योर नवांशा चार्ट. इन एरीज, कैंसर, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न में आपके प्लांट ज़रूर प्लेस होंगे. इन साइंस एंड नक्षत्रस में आपके प्लांट ज़रूर प्लेस्ड होंगे. सन, मून, राइजिंग, आत्मकार का असेंडेंट, असेंडेंट लॉर्ड इन साइंस एंड नक्षत्रस में ज़रूर प्लेस होंगे. D1, D12 या D9 नवांशा चार्ट में. So that was it. This was the reading. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Also, like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade lens energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye, so you can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading. Pile number 1, tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose this pile because आपका बर्थडे जो है राजसिक साइंस वाले सीजन्स में से किसी एक सीजन में आता है. लेट्स गेट स्टार्टेड. वी आर गोना स्टार्ट विद द ओरेकल फर्स्ट. So what is happening for pile number 2, life of pile number 2 in the 4th quarter or the last quarter of 2024, October, November, December. ये क्या चीज़ें हो रही है pile number 2 के लिए. So we have palm, we have destiny. Many of you will get, pile number 2 will get attracted towards palmology, will learn a lot of things about the lines of your palm. You will see that these are the marriage line, this is the heart line, the destiny line, the life line, mount of Venus, mount of Sun, Jupiter, Mercury. So you will get to know about all these things. All right, you're gonna get to know how long you may live. All right, you may get to know जैसे कोई पर्सन सोसाइटल प्रेशर में कौन आ सकता है और कौन सोसाइटल प्रेशर में नहीं आ सकता है. जिसका ये फिंगर जो है ये बड़ा है, इंडेक्स फिंगर बड़ी है, वो अपने रिंग फिंगर से बड़ी है, वो पर्सन सोसाइटल प्रेशर में नहीं आता है. जिन लोगों की ये दोनों फिंगर्स, रिंग फिंगर और ये इंडेक्स फिंगर बराबर होती है, वो लोग सोसाइटी और अपनी इच्छाओं को जो है इक्वल बैलेंस कर पाते हैं. बट जिन लोगों की ये इंडेक्स फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है, वो लोग कहीं ना कहीं सोसाइटल प्रेशर में आ जाते हैं और वो चीज़ फॉलो नहीं कर पाते, अपनी इच्छाओं को फॉलो नहीं कर पाते हैं. सो somehow many of you will be very much interested in palmology, will somehow get connected to YouTubers or people who are on Instagram who talk about palm and palm lines, or you may guys even get to your Amazon or some Google. The algorithm tells you that you should buy this book which is related to palmology. तो you and later you realize कि आपने वो खरीद ली बुक, अब वो आपके घर भी आ गई है. So many of you are going to be very much interested in palmology या palmistry. Is it palmology is the right term, or it's palmistry? I guess it's palmistry. So yeah, and also many of you I feel are in medical field. Many of you guys are going to learn about anatomy. All right, anatomy के बारे में आप पढ़ो, स्पेशली अपनी ये जो बोन्स है, वेदर इट्स चाहे वो आपकी अल्ना बोन है, चाहे वो फिबिया या ओके. आई हैव लर्नड एनाटॉमी इन माई लाइफ इन माई 11th and 12th. बट अब मैं भूलने लग गई हूँ अपनी एनाटॉमी जो मैंने पढ़ी थी, बट मेरे को बहुत अच्छे से आती थी किसी टाइम पर. फ्लेंजेस, पैरों के जो बोन्स होती है उनको कहते हैं फ्लेंजेस, और देयर आर अदर टर्म्स एज वेल. सो yeah, so you start to learn about these bones in the next 3 months, October, November, December में आप इन bones के बारे में, structure of bone के बारे में पढ़ो. And many of you will have some skills of hands. Many of you will have great interest towards astrology, occult mysticism. You guys will be very much interested to know what is in your destiny, what is about to happen in your life. तो फ्यूचर को लेकर, फ्यूचर हम कैसे जान सकते हैं, क्या टूल्स है फ्यूचर को जानने के लिए. एस्ट्रोलॉजी की भी डिफरेंट जो है लाइन्स है, वेदर इट्स नंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, वेदर इट्स जैमिनी एस्ट्रोलॉजी, वेदर इट्स Parashara astrology, with स्केपी एस्ट्रोलॉजी. सो डिफरेंट जो है एस्ट्रोलॉजी की भी ब्रांचेज है. ये टूल्स है जो हमें प्रिडिक्ट करा सकते हैं कि क्या फ्यूचर है.
These are the tools. So you start to learn about these things. Many of you can even go to astrologers or tarot card reader to get to know about your destiny, but in general as well, pile number 2, you guys will be very much interested in getting to know कि एस्ट्रोलॉजी या टेरो या मिस्टिसिज्म या पामिस्ट्री के बारे में आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में पढ़ो, आप खुद इन चीज़ों को मास्टर करना चाहोगे, आप खुद इन चीज़ों को पढ़ना चाहोगे, ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन है. Alright, then we have the infinity card. It says unlimited potential. You also will notice कि जो भी information आपके पास है, many of you can be PhDs, many of you pile number 2 can be doing some masters, but still आपको ऐसा लगे कि बहुत कुछ है जो मुझे अभी learn करना है, ये तो शायद कुछ भी नहीं जो मैंने अभी तक learn करा है. There is infinite information which I need to put in my mind. ऑल राइट, जो मेरे को अभी अंडरस्टैंड करनी है. बट यू विल ऑल्सो नोटिस कि आपके पास पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं पर समय आपके पास कम है, आप ये चीज़ भी रियलाइज़ करोगे. बट यू ऑल्सो पाइल नंबर 2 हैज़ दिस अनलिमिटेड, यू गाइस हैव अनलिमिटेड पोटेंशियल. ऑल राइट, आपका जो माइंड है या जो ब्रेन है वो काफ़ी तेज़ है, आपका IQ बहुत अच्छा हो सकता है, आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाओगे. इन द नेक्स्ट 3 months यू विल नोटिस कि डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट आप विद ईज़ पढ़ पाओगे, उसे याद कर पाओगे, उसको समझ पाओगे. यू हैव दिस अनलिमिटेड पोटेंशियल इन यू. Then we have traffic cones. It says caution. So आप यहाँ पर आपके लिए guidance भी है, be cautious. All right. ट्रैफिक कोन्स हम तब लगाते हैं जब हमें कॉशन चाहिए, जहाँ पर ध्यान से हमें चलना है. तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के मंथ में ध्यान से आपको चलना है क्योंकि आपसे गड़बड़ भी हो सकती है. सो जोश में होश नहीं खो देने हैं. सो हर चीज़ ध्यान से करनी है. जब आप हर चीज़ ध्यान से करते हो तो आपसे गलती नहीं होगी, परफेक्शन से आप चलोगे. अटेंशन रखो, टेंशन मत रखो. अटेंशन दो चीज़ों पर, जो आप कर रहे हो, जो आप बोल रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो. अटेंटिव होकर काम करो तो आप देखोगे आपका काम बहुत परफेक्शन के साथ होगा. एंड यू गाइस शुड ड्राइव सेफली. ऑल राइट, ये भी आपके लिए गाइडेंस है कि आपको इन द कमिंग अक्टूबर का तो मंथ अभी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 मंथ जो है ध्यान से ड्राइव करना चाहिए. ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग मेजर गाइडेंस है. देन समथिंग एल्स फॉर पाइल नंबर 2. what is happening for them in the last quarter of 2024. So we have the renewal card. You will notice that your energy is coming back, your powers are coming back, your wisdom is coming back. आपकी जो सोल है वो पास्ट लाइफ में जो उसके साथ एक्सपीरियंसेस हुए और जो चीज़ें उसने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखी थी, यू विल बी एबल टू टैप इन टू दैट विजडम. जो आपने सीख ली उस सीख में आप टैप इन कर पाओगे. आपके पास और विजडम आते हुए नज़र आ रही है. एंड इट कैन हैपन इन द पास्ट फ्यू वीक्स. आपके पास शायद इतनी एनर्जी नहीं थी, बट यू विल नोटिस कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपकी एनर्जी वापस आएगी और आप चीज़ों में वो एनर्जी डाल पाओगे. मतलब आप चीज़ों में कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे. आई फील आप 1 स्टेप एट अ टाइम कर रहे हो, आप मल्टीटास्किंग ज़्यादा नहीं कर रहे हो, 1 स्टेप एट अ टाइम कर रहे हो. इस वजह से हर चीज़ परफेक्शन के साथ होगी. रिन्यूअल ये भी शो करता है देयर कैन बी सम ओल्ड थिंग कमिंग बैक इन योर लाइफ. जैसे कोई चीज़ आपने शायद बहुत पहले पढ़ी थी और फिर आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है, या कोई प्रोजेक्ट था जो आपके हाथ से निकल गया था एंड फाइनली दैट प्रोजेक्ट इज़ अगेन कमिंग बैक टू यू. आपको लगा था कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास लाइफ में कभी नहीं आएगी, फाइनली इट इज़ कमिंग बैक अगेन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. तो वो चीज़ रिन्यू हो रही है. इट कैन इवन हैपन कि आप अपनी सब्सक्रिप्शंस को रिन्यू करो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में. तो कोई ना कोई चीज़ें रिन्यू करते हुए नज़र आ रहे हो. देन वी हैव फेथ कार्ड. सो आपका जो फेथ है, जो ऑल माइटी अथॉरिटी पर आपका जो फेथ है गॉड पर, वो और बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है. बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो विल फील दैट देयर आर other souls as well around you. All right, so recently एक चीज़ मैंने रियलाइज़ करी. it was night time, all right, I was sleeping. Suddenly मुझे ऐसा फील हुआ मेरे बेड पर कोई आकर बैठ गया है. ऑल राइट, मेरे बेड पर आकर कोई बैठ गया है. मेरे को लगा ये क्या हुआ. फिर मेरे को ऐसा फील हुआ कि किसी ने मेरे पेट पर ऐसा दबाव दिया, प्रेशर दिया. जैसे कोई हाथ रखे तो आपको दबाव या प्रेशर थोड़ा फील होता है. तो मेरे को वो फील हुआ. तो मैं एकदम से जो मैंने ओढ़ने के लिए लिया हुआ था, जो मेरा ब्लैंकेट था, वो मैंने उठाया, साइड करा और वहाँ पर कोई भी नहीं था. इट वॉज नाइट टाइम.
तो आई वॉज थिंकिंग कि ये क्या हुआ, अभी मुझे ऐसा फील हुआ कि समवन वॉज देयर, और बड़ी गर्मी सी भी आ रही थी जब उस पर्सन ने मेरे पेट पे ऐसे हाथ रखा है, साथ में जैसे मेरे आके कोई बैठ गया तो वहाँ गर्मी सी भी मेरे को फ़ील हो, वो जगह भी गरम गरम मुझे फ़ील हो। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। फिर मैंने टाइम देखा तो टाइम हो रहा था 4 AM, एंड यूजुअली दिस हैपन्स टू मी कि 3:30 या 4 AM पर ना मेरी जाग खुलनी शुरू हो जाती है। और ये वो अमृत वेला का समय है जहाँ पर कभी टीनेज में मैं इस टाइम का ना वो अलार्म लगाती थी कि भाई मेरे को ना 3:30 या 4 AM मॉर्निंग उठ कर ना मेडिटेशन करना है। कई बार मैं बहुत अच्छा मेडिटेशन कर पाती थी, कई बार मैं नहीं भी कर पाती थी क्योंकि मैं सो जाती थी। पर नाउ देख फॉर पास्ट फ्यू मंथ्स मेरी अपने आप जाग खुल जाती है। मैंने कहा ये तो परमात्मा खुद आकर मुझे जगा रहे, तो मेरे को जाग जाना चाहिए। तो फिर मैं इस टाइम पीरियड मतलब 3, 3:30 या 4 बजे सुबह फिर देन आई स्टार्ट टू मेडिटेट, और फिर मेरे को नींद भी 5:30 के करीब ही आती है फिर, या फिर मैं उठ ही जाती हूँ। तो बेसिकली ऐसा होता है मेरे साथ आजकल। बट जो मैंने वो एक्सपीरियंस करा, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, जो मैंने एक्सपीरियंस करा कि जैसे सच में मेरे साथ कोई आकर बैठ गया है। तो एक बार तो जैसे डर की फीलिंग क्रिएट हुई अंदर, बट जो भी हुआ, but I do feel myself, and I did talk to my father about this. He said that yes, there are some souls which are always with us. और वैसे भी आज की डेट में अकाल मृत्यु बहुत ज़्यादा है। कोई 20 साल का, कोई 10 साल की उम्र में ही किसी आत्मा को शरीर छोड़ना पड़ जाता है। अब वो आत्मा को पता नहीं नया शरीर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो आत्मा भटकती भी है। ऑलराइट, और गीता में भी ये चीज़ लिखी है, जो जिसको ध्याएगा वो उसको पाएगा। यानी जिसका सिमरन आप करते हो उसको आप पा लेते हो। तो आप किसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो? जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। अगर आप सोचते हो ऐसी सोल्स के बारे में जो शायद किसी का नुकसान कर सकते हैं, तो उन सोल्स को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लोगे। अगर आपका मन जो है भगवान की तरफ है, तो आप भगवान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। भगवान तो एक थॉट आप दो भगवान की तरफ, भगवान अभी हाजिर नाजिर है, आपके बिल्कुल साथ है। तो जो जिसको ध्याएगा वो उसको पाएगा। तो ये चीज़ तो हमारे जो है शास्त्रों में, ये तो भगवद गीता में भी है। तो आप जिसको याद करोगे वो आएगा ही आएगा। सो समहाउ यू विल, जैसे फेथ का कार्ड यहाँ पर आया है, तो समहाउ यू विल नोटिस कि जिस पर आपको बहुत विश्वास है, जिस पर आप जिसको बहुत आप ध्याते हो, जिसको बहुत आप याद करते हो, वो एनर्जी को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। So if you think a lot about negative souls, if you think a lot about ghosts and all these things, you will attract them towards you, क्योंकि ये चीज़ें भी है, ये पावर्स भी है, ये भी एग्जिस्ट करती है। ऑलराइट, सो आप ध्यान से सोचो आप किसके बारे में सोच विचार करते हो। ऑलराइट, तो ध्यान रखो इस बात का, किन लोगों के बारे में, किन सोल्स को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। ऑलराइट, सो जैसा सोचोगे वैसे एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करोगे। बट ये फेथ कार्ड यही शो कर रहा है कि पाइल नंबर 2, यू गाइज विल अट्रैक्ट गॉड टूवर्ड्स योर सेल्फ, यू विल अट्रैक्ट गुड सोल्स टूवर्ड्स योर सेल्फ, यू विल अट्रैक्ट सोल्स जो समहाउ आपकी मदद करती है, आपको हेल्प आउट करती है, समय आने पर आपकी मदद ज़रूर करती है और आपको कुछ अच्छी चीज़ ऑफर करती है। ऐसी सोल्स को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो, समहाउ आपको हेल्प आउट ज़रूर करेंगे। ये भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है। आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ कोई आपके साथ बुरी चीज़ हो रही है और कोई बहुत ही बुरी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है। आई एम नॉट सेइंग दिस, बट आई सी दैट यू विल सडनली समहाउ विल गेट हेल्प्ड बाय सम वेरी पॉजिटिव सोल्स। कहीं ना कहीं से आपको मदद आएगी, एक इंसान से नहीं पर एक सोल से मदद आपको आएगी। किन्हीं सोल्स आपकी मदद करेंगे इन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। फिर यहाँ पर लेट्स पुल सम स्पेसिफिक कार्ड्स अबाउट योर एजुकेशन, जॉब, बिजनेस। सो वी हैव द किंग ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ शो करता है समटाइम्स यू हैव टू बी विलिंग टू बेंड द रूल्स अ लिटिल। सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक यू सीम टू बी एक्सट्रीमली पैशनेट अबाउट सर्टन थिंग्स, यू सीम टू बी एक्सट्रीमली पैशनेट अबाउट योर एजुकेशन या जॉब या बिजनेस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो। इनफैक्ट you are changing, mending some rules, making new rules. आप विलिंग हो कि नहीं चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए, तो आप लेट नाइट तक भी आप वर्क करो उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए।
ऑलराइट। तो आप दिन रात एक करते हो, आप बहुत मन लगाकर काम करते हो, दिल लगाकर काम करते हो, और जो काम हम दिल लगाकर करते हैं उसका रिजल्ट, उसका जो फ्रूट होता है वो बड़ा स्वीट होता है। तो वो स्वीट फ्रूट आपको ज़रूर मिल रहा है अपने करियर में। समहाउ दिल लगाकर काम करें और उसका रिजल्ट है कि आपको मन पसंदीदा रिजल्ट उसका मिल रहा है, सेटिस्फैक्ट्री उसका फ्रूट मिल रहा है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। एजुकेशन में हो तो एजुकेशन में आप जो एफर्ट पुट करते हो उसका जो मार्क्स या रिजल्ट है वो आपके फेवर में है। जॉब में अगर आप बहुत अच्छे एफर्ट्स करते हो तो समहाउ यू गेट द क्रेडिट ऑफ योर वर्क, यू बिकम फेमस इन योर कंपनी। अगर आप बिजनेस में हो तो बिजनेस में आप अगेन कुछ नई चीज़ अनऑर्थोडॉक्स वेज से काम कर रहे हो तो आपके क्लाइंट्स आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे। समहाउ वर्ड्स दूसरों के, मतलब दूसरे लोग आपके बारे में तारीफ़ करने वाले हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। अनएक्सपेक्टेड आपको तारीफ़ मिले दूसरे लोगों से, पीपल एट वर्क से, आपके मेंटोर्स, गुरु से, अपने बॉसेस से, अपने क्लाइंट्स से आपको तारीफ़ सुनने को मिले अपने बारे में, बिकॉज आप जैसा काम कोई और कर नहीं सकता। यू सीम टू बी एक्सट्रीमली पैशनेट एज वेल एज हार्ड वर्किंग टूवर्ड्स योर करियर। अबाउट योर दिस इज द लवर्स कार्ड केम फॉर योर फाइनेंसेस। अगर आप खुद अर्न करते हो तो ये आपके फाइनेंस, अगर आप खुद अर्न नहीं करते तो आपके परिवार में जो भी अर्न करते हैं उनके फाइनेंसेस को शो करता है। लवर्स हेयर इज शोइंग विल यू और वोंट यू, द चॉइस इज योर्स। So I feel that you guys are earning very good amount of money. You have the money to buy what you want to buy. I do see you buying some expensive thing. आप अपने पैसे जो हो अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर खर्च करो या अपने परिवार के ऊपर खर्च करो, ये नज़र आ रहा है। और अपने लिए आप कोई गैजेट ले सकते हो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, कोई नया फ़ोन ले सकते हो, कोई गैजेट ले सकते हो, नई गाड़ी ले सकते हो। लवर्स एक एक्स्ट्रावेगेंट कार्ड है, तो ये कोई महंगी चीज़ है जो आप खरीद रहे हो। इट कैन बी यू बाइंग सम एक्सपेंसिव हैंड बैग और सम एक्सपेंसिव थिंग यू आर डेफिनेटली बाइंग। ये चॉइस आपके पास है कि आप ये खरीदना चाहते हो या नहीं, क्योंकि एक्सपेंसिव चीज़ है। इट्स योर चॉइस। आपके पास इतना मनी है कि आप वो खरीद पाओ, आप उस चीज़ में अपना मनी लगाओ, आपके पास इतना मनी है, चॉइस इज़ योर्स। बट आई डू फील या आप कोई डेफिनेटली एक्सपेंसिव चीज़ ज़रूर ले रहे हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कोई गैजेट आप ले रहे हो, कोई गाड़ी ले रहे हो। समवन इन योर फैमिली इज़ बाइंग अ कार, समवन इन योर फैमिली इज़ बाइंग अ न्यू फोन, सम न्यू गैजेट, सम न्यू इलेक्ट्रॉनिक थिंग, ऑलराइट। एंड यू आर ऑल्सो स्पेंडिंग मनी ऑन योर फैमिली मेम्बर्स, और आप कोई एक्सपेंसिव चीज़ पर अपना मनी लगाते हुए नज़र आ रहे हो। यू हैव गुड मनी इज़ कमिंग टू यू। अच्छा मनी आपके पास आ रहा है, यानी लार्ज सम्स ऑफ मनी इज़ कमिंग टू यू। About your personal life, so we have the Two of Pentacles. Two of Pentacles is giving me the message when it says when life gets chaotic, find a way to get grounded and balanced. So आप अपने फैमिली ड्रामा में इन्वॉल्व हो जाते हो। मतलब कोई किसी फैमिली मेम्बर की मत दूसरे फैमिली मेम्बर से नहीं मिली तो दे आर फाइटिंग ओवर इट और दे आर हैविंग अ डिबेट ओवर इट कि मैं सही हूँ तुम गलत हो बिकॉज ऑफ दिस इज मैनी रीजन। सो यू स्टार्ट टू काम देम डाउन, बट बात कहीं ना कहीं आप पर भारी पड़ जाती है। एंड देन यू आर लाइक वाई यू गाइज आर ब्लेमिंग मी नाउ, मैं तो यहाँ पर सिर्फ तुम्हारा झगड़ा ख़त्म कराने आई थी, तुम मुझ पर ही ब्लेम करने लगे। सो येस, ब्लेम्स कैन कम टू यू in terms of personal life, blames can come to you. So don't get involved in that family drama. Do not get involved in other people's fight. Even though आप वो fight को resolve करना चाहते हो, but वो आप पर भारी पड़ सकता है, वो आप पर उल्टा पड़ सकता है। So आप अपना किनारा कर लो, आप उधर उस चीज़ में इन्वॉल्व मत हो, साक्षी दृष्टा होकर देखो, साक्षी होकर देखो कि क्या चल रहा है। जैसे अगर नेबरहुड में कोई लड़ाई हो जाती है ना, पुलिस भी आ गई नेबरहुड में, तो आप खिड़की से सिर्फ देखोगे, आप करोगे कुछ नहीं ना, आप परेशान होगे, आपको कहीं ना कहीं वो एंटरटेनमेंट फील होगा क्योंकि आपका बस नहीं चलता ना उस चीज़ पर, तो आप सिर्फ साक्षी होकर देख रहे हो। उसी तरह अगर घर में ऐसी चीज़ें होती है, पर्सनल लाइफ में ऐसी चीज़ें होती है, तो साक्षी होकर देखो क्योंकि शायद आपके समझाने से भी दूसरा समझे ना और आपको गलत ठहरा दिया जाए। सो बी केयरफुल। तो टू ऑफ पेनिकल्स यहाँ पर यही गाइड कर रहा है कि आप साइड हो जाओ, किनारा कर लो। और टू ऑफ पेनिकल्स ये भी शो करे इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड, सो इट कैन हैपन दैट यू आर बैलेंसिंग योर रिलेशनशिप, मे बी यू आर वॉकिंग ऑन एगशेल्स इन योर मैरिज और रोमांटिक रिलेशनशिप। कोई ना कोई बात आपके लाइफ पार्टनर को बुरी लग जाती है एंड देन यू हैव टू से सॉरी टू देम। बहुत सेंसिटिव आपके लाइफ पार्टनर, आपके रोमांटिक पार्टनर नज़र आ रहे हैं, तो आपको बड़ा सोच समझ के उनसे बात करनी पड़ रही है, ये इन्फॉर्मेशन आ रही है।
कई बार एक पर्सन बहुत एक्सट्रीमली सेंसिटिव हो जाता है ड्यू टू इमोशनल हर्ट फ्रॉम द पास्ट. सो कहीं ना कहीं आप सॉरी मांगते हो अपने पार्टनर से, आप पहला कदम उठाते हो सॉरी की तरफ, अपॉलॉजीज़ की तरफ. तो यू ट्राई टू बैलेंस योर रिलेशनशिप आउट, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है. बट स्पाउस या लाइफ पार्टनर बहुत रोमांटिक पार्टनर बहुत इमोशनल सेंसिटिव नेचर के नज़र आ रहे हैं. उनको बहुत पुचकारना पड़ता है. ऑल राइट, यू मे हैव टू ट्रीट योर लाइफ पार्टनर लाइक योर ओन चाइल्ड. यू हैव टू ट्रीट देम इन अ वेरी वेरी नाइस मैनर. जैसे बच्चों को हल्की सी भी ऊंची आवाज़ में बोल दो तो उनको बुरा लगता है, वो तंग हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं. तो उसी तरह लाइक this sensitivity is going to be in your life partner too. If you're not married, or if you don't have you're not in a romantic relationship, so you can come in a romantic relationship with someone. You can attract someone towards you जो person emotionally बहुत sensitive होगा, emotionally available भी होगा, but बहुत sensitive भी होगा चीज़ों को लेकर. इसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे वैसा कहा, तो मुझे इस बात का हर्ट हो गया, मुझे बहुत बुरा लगा. तो ऐसे sensitive person को आप अपनी तरफ attract कर रहे हो. All right, तो again this person can also become your friends, but you're attracting someone जो बहुत emotional होगा, बहुत sensitive होगा, रफ टफ नहीं है, परवाह मारता है, परवाह हो जाती है इस पर्सन को, इसने मुझे ऐसा कहा था, नहीं कहना चाहिए था. ऐसे पर्सन को आप अपनी तरफ, छुई मुई टाइप ऑफ पर्सन को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो. जो छुई मुई होता है ना, या जो बहुत शाय होता है, वो एक विकार है. अगेन ये भी एक वाइस है, क्योंकि वो बहुत बॉडी कॉन्शियस होता है, सोल कॉन्शियस नहीं है, वो बॉडी कॉन्शियस बहुत है. उसको हर एक, इसने मुझे ऐसा कहा, उसके ईगो पर चली जाती है बात, ईगो हर्ट हो जाती है उसकी, मुझे ऐसा कह दिया, मुझे बहुत बुरा लगे. ये ईगो है, अहम है, तो ये वाइस है. ऐसे पर्सन का सन आत्मा कारक हो सकता है, सन लिब्रा साइन में प्लेस्ड हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम सन एग्जॉल्टेड होगा. ऐसे पर्सन का जो फ्रैजाइल ईगो वाला होता है ना, उसका सन एग्जॉल्टेड मिलेगा, या सन फर्स्ट हाउस में मिलेगा. जिसका सन लिब्रा या 7th हाउस में ना, ऐसा पर्सन जेंटलमैन होगा, वो दूसरों के लिए बहुत करेगा, उसको इतना बुरा नहीं लगेगा. बट जिसका सन एग्जॉल्टेड है ना, स्पेशली भरणी नक्षत्र में सन प्लेस है, शाय होगा वो, और ईगो होगी, सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होगी. इसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे वैसा कह दिया, इसने मुझसे ऊंची आवाज़ में बात कर ली. उसको होता है कि मैं सन हूँ, मैं सन किंग है ना, मुझसे तो बड़े आदर सम्मान से बात करनी चाहिए थी, ऐसे कैसे मुझसे बात कर ली. तो ईगो आ जाता है. तो ऐसे पर्सन को कहीं ना कहीं आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो. सो बी वेरी केयरफुल. ये ठीक बात नहीं है. बी वेरी केयरफुल फ्रॉम दिस काइंड ऑफ पर्सन, बिकॉज यू कैन अट्रैक्ट दिस पर्सन. और फिर आप ही को इन द एंड ऑफ द डे इस पर्सन से सॉरी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि इस पर्सन का ईगो इस पर्सन को अलाउ नहीं करता सॉरी कहने के लिए. इवन दो इस पर्सन की गलती है, पर स्टिल आपको सॉरी कहनी पड़े. सो या दिस काइंड ऑफ पर्सन यू कैन अट्रैक्ट. और कहीं ना कहीं इन 3 months में अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो या एक रोमांटिक रिलेशनशिप में हो, तो थोड़ा आपके पर्सन जो है सेंसिटिव नज़र आ रहे हैं, इमोशनली सेंसिटिव नज़र आ रहे हैं. देन अबाउट योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है. सो वी हैव द 7 of Wands. 7 of Wands यहाँ पर शो करता है witches should hold other witches accountable. 7 of Wands उंगली करना, फॉल्स ब्लेम आना, नेचुरली इस चीज़ को शो करता है, जो हमने डिस्कस भी करी 2 of Pentacles में, कि पर्सनल लाइफ में ऐसा हो सकता है, गलती आपकी नहीं है, पर आप दूसरों को समझाने आए हो, पर दूसरे लोग आप पर ही उंगली करने लग जाए, आप ही को दोषी ठहराने लग जाए, आप पर फॉल्स ब्लेम आए, और इवेंचुअली वो चीज़ ऑफ कोर्स आपको उदास करेगी वो चीज़. सो ये यहाँ पर होता हुआ नज़र आया. ये चीज़ आपकी मेंटल हेल्थ को थोड़ा ख़राब कर सकती है. सो गाइडेंस ये कि किनारा करो सिचुएशन से, लोगों से जो लड़ रहे हैं उनसे दूर रहो, क्योंकि आप लपेटे में आ सकते हो. ऑल राइट, सो अपनी मेंटल हेल्थ पर फोकस करो, अपने पीस ऑफ माइंड पर फोकस करो, अपने और पढ़ने में अच्छी चीज़ें इस पर फोकस करो. ये गाइडेंस है. पर दूसरों के साथ आपको ज़्यादा नहीं टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ऑफकोर्स जहाँ एक पॉजिटिविटी है, जहाँ पर लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट करें, वहाँ ज़रूर जाओ. पर जहाँ आपको लगता है ना ये लड़ लेते हैं, लड़ झगड़ लेते हैं, वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखो. वहाँ पर आपको उन चीज़ों में इन्वॉल्व या उन लोगों के साथ इन्वॉल्व फिर नहीं होना चाहिए.
खेलो कूदो मज़े करो, बट जहाँ आपको लगे ये लड़ाई होने वाली है वहाँ से निकल लो पहले, क्योंकि आप पर फिर ब्लेम आ सकता है इन दी एंड. ऑलराइट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव वुल्फ. इट सेज इंस्टिंक्ट, सो ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, इट्स गोना गाइड यू वेल. ऑलराइट, वुल्फ वैसे भी पैक्स में रहता है, अकेला कभी नहीं रहता. सो यू सीम टू बी समवन जो दूसरों का साथ चाहता है और जिसको दूसरों का साथ मिलेगा भी, बट बी केयरफुल कि आप पर ब्लेम ना आ जाए. बट आई डू सी यू विद अदर पीपल, डू सी यू इन्वॉल्व विद अदर पीपल, having creating happy memories with other people. all right, but trust your intuition. जहाँ पर आपको लगे यार लड़ाई हो सकती है वहाँ से पहले ही निकल लो, अदरवाइज आप पर फॉल्स ब्लेम आ सकता है. आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा नज़र आ रहा है, मेंटली भी आप अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हो, बट जैसे ही वो ब्लेम आना शुरू होता है तो ऑफकोर्स आपका मेंटल हेल्थ बिगड़ना शुरू होगा. सो ट्राई टू अवॉइड सच सिचुएशन. आपका इंट्यूशन आपको ज़रूर गाइड करेगा, आपका गट फीलिंग आपको ज़रूर गाइड करेगा कि आपको क्या करना चाहिए, निकलना चाहिए या इधर रहना चाहिए, और अपनी गट फीलिंग को ज़रूर फॉलो करो. बट नेचुरली हेयर इट शोज़ कि भाई अक्टूबर नवंबर दिसंबर के मंथ आपके लिए अच्छे ही रहने वाले हैं. आपका मेंटल और फिजिकल हेल्थ स्टिल अच्छा ही नज़र आ रहा है. ऑलराइट, सो एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो आई सी के द साइन ऑफ again sun can be atmaकार का planet holding the highest degree in your chart. Planet which is nearest to the 30 degrees can be sun. all right, and it can also be Mars, it can also be moon. all right, moon can also be your धाराकार का planet holding the high lowest degree in your chart which represents your spouse. it can be moon, या moon आपका 7th house में placed हो, या नवांश चार्ट में moon 7th house में placed हो. it shows that you are going to get a spouse who is quite moody in nature. तो ये नज़र आता है. इवन मार्स मून का कंजंक्शन हो सकता है. मार्स इज हस्बैंड इन अ फीमेल चार्ट, अगेन मार्स मून का कंजंक्शन शो करता है हस्बैंड इज गोना बी क्वाइट मूडी. वीनस मून का कंजंक्शन शो करता है, इफ यू आर अ मेल वॉचिंग दिस रीडिंग देन वीनस इज वाइफ इन अ मेल चार्ट, तो वाइफ विल बी एक्सट्रीमली मूडी इन नेचर. तो ये शो करता है. अगेन एस्ट्रोलॉजी के लिए जो साइंस यहाँ प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है, इसी के जो साइन ऑफ एरीज है, साइन ऑफ टॉरस, लियो, सेजिटेरियस, इनमें प्लांट्स प्लेस होंगे. एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका स्पिल करता है टॉरस में. देन वी हैव रोहिणी, मृगशिरा. फिर लियो में वी हैव माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी. फिर सेजिटेरियस में वी हैव द नक्षत्र ऑफ मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तर आषाढ़ा. तो इन साइंस, इन नक्षत्रस में आपके सन मून राइजिंग आत्माकार का असेंडेंट लॉर्ड ज़रूर प्लेस होंगे इन द D1, D12 या D9 नवांश चार्ट में. all right, so do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, astrologically. Also write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundali reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye, so you can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 3. So this is your reading. You chose this pile because आपका birthday तामसिक साइंस वाले सीजन्स में से किसी एक सीजन में आता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. पाइल नंबर 3 हम सबसे पहले इन ऑरेकल से शुरू करेंगे. योर लाइफ इन द 4th quarter और लास्ट क्वार्टर ऑफ 2024, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये कैसे रहते हैं ये 3 months. सो वी हैव माउंटेन्स, वी हैव ऑब्स्टिकल्स. सो it does show that you are going to deal with some obstacle, you are going to deal with some challenges, but you also need to understand pile 3 कि जिन problems को आपने पहाड़ जैसा बड़ा समझा है, असल में वैसा कुछ नहीं है. when you actually go through those obstacles you realize कि इतना वो मुश्किल नहीं था जितना आपने मन ही मन उस प्रॉब्लम को बना रखा था अपने लिए मुश्किल, या उसको पहाड़ जैसी प्रॉब्लम बना रखी थी. ऑफकोर्स ये कॉम्पिटिशन है, ये कोई चैलेंज है, ये कोई ऑब्स्टिकल है जो आपको फेस करना पड़ेगा. बट यू विल ऑल्सो रियलाइज कि जब हम कोई चीज़ करने पर आता है तो हम कर लेते हैं. आपका कहीं ना कहीं इन कॉम्पिटिशन चैलेंजेस को फेस करने के बाद कॉन्फिडेंस या अपने लिए एक सेल्फ रिस्पेक्ट और बढ़ता है. Then we have butterfly. It says metamorphosis. So butterfly card here shows that like a butterfly is not born as a butterfly. Alright, so it shows with this card that you are a self-made person. You are not coming from a affluent family. आप खुद अपनी परिवार को affluent बनाओगे, आप खुद rich और wealthy होगे. आप खुद ऐसे background से नहीं आते, पर आप अपने खुद के efforts के through अपने आप को एक काबिल इंसान बनाओगे, अपने आप को एक wealthy इंसान बनाओगे.
रिच इंसान बनाओगे. सो इट शोज दैट यू आर ऑल्सो समवन हु विल गो थ्रू अ लॉट ऑफ स्टेजेस इन लाइफ एंड देन विल बिकम अ बटरफ्लाई. बट इट डज शोज विद द बटरफ्लाई कार्ड दैट समथिंग इज कमिंग टू फ्रूशन. कोई चीज़ ऐसी है जिसका फ्रूट, जिस चीज़ के लिए आपने बहुत एफर्ट करा था, आपने हर तरीके से उसमें एफर्ट डाला था, फाइनली उसका फ्रूट अब आपको मिल रहा है इन द नेक्स्ट 3 months. एंड वी हैव स्कल कार्ड, इट सेज एंडिंग. तो कोई चीज़ का कंप्लीशन हो रहा है, कोई चीज़ यहाँ पर अब ख़त्म हो रही है, उसका एंड हो रहा है. बट दिस इज़ अ ब्यूटिफुल एंड बिकॉज ये एंडिंग एक गुड एंडिंग है, एक पॉजिटिव एंडिंग है. कोई चीज़ डेफिनेटली कंप्लीट हो रही है. जैसे लास्ट स्टेज होता है बटरफ्लाई का, जब वो बटरफ्लाई सच में बनती है, उससे पहले लार्वा, कोकून एंड ऑल दो स्टेजेस कम्स इन. आखिर में इट बिकम्स द बटरफ्लाई. सो लाइक देयर इज समथिंग जिसका कोई फ्रूट अब आपको मिल रहा है और वो चीज़ का एंड हो रहा है. मे बी देर वॉज सम प्रोजेक्ट यू वर वर्किंग ऑन एंड फाइनली दैट प्रोजेक्ट इज कमिंग टू एन एंड, दैट टू अ पॉजिटिव, अ ब्यूटिफुल एंड, एंड यू आर हैप्पी अबाउट इट कि जिस चीज़ के लिए हम बहुत महीनों से एफर्ट डाल रहे थे, फाइनली उस चीज़ का एंड हुआ है और वो एंड आपको अच्छा लगा है, उसका फ्रूट अब आपको मिला है. Something more. So we have Capricorn sign. Its ruler is Saturn. It says administrative, self-will, conservative, industrious, preserving, controlling, aloof, structured. So yeah, Capricorn is a sign of career. हमारे कर्म का साइन है, कर्म क्षेत्र को शो करता है, हमारे ऑफिस एरिया को शो करता है ये Capricorn. Alright, so Saturn can also be Atma Karka planet, pile number 3. ऑलराइट. एंड सैटर्न समहाउ 10th हाउस में हो सकता है, 1st हाउस में हो सकता है, 2nd हाउस में हो सकता है, आपका 7th हाउस में हो सकता है. ये सारी प्लेसमेंट सैटर्न की आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाएगी दूसरों के प्रति. आपका जो दशांश चार्ट है वो स्पेसिफिकली D10 चार्ट इज़ रिलेटेड टू करियर. उसके अंदर सैटर्न असेंडेंट या 10th हाउस में प्लेस हो सकता है. इट अगेन शोज़ कि आपको लॉन्ग आवर्स तक वर्क करना पड़ेगा. आपको मतलब जब लोग सारे सो जाते हैं तब भी आप काम करो. इवनिंग के बाद उगने वाला ग्रह है सैटर्न, तो इवनिंग के बाद भी आप काम करोगे और आपके ऊपर दूसरे लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा. आपको आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम करोगे, आपको दूसरों के लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा. दे आर गोना बी पीपल हु आर गोना बी वर्किंग अंडर यू एंड आपका एक गलत एफर्ट, आपका एक गलत जगह पर एफर्ट दूसरों के लिए भी बहुत भारी पड़ सकता है. आपको ऐसी इंपॉर्टेंट पोजिशंस पर आपका डेस्टिनी डालेगा. बट डेफिनेटली दिस इज़ द रीडिंग ऑफ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपको ऐसी पोजीशंस पर होना पड़ेगा जहाँ पर यू आर गोना बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर पीपल्स लाइफ्स, अदर पीपल्स करियर. आपको लॉन्ग आवर्स तक वर्क करना पड़ेगा. सो अपनी कमर की पेटी बांध लो या कमर की जो भी होता है वो बांध लो, क्योंकि अब जो है इट्स अ टाइम टू वर्क, इट्स अ टाइम टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स इन करियर. आपका एक ऐसा समय आ रहा है जहाँ पर आप रेस्ट इतना नहीं कर सकते, जहाँ पर आपको कोई चीज़ कंप्लीट करनी है. मे बी सम डेडलाइन इज देयर एंड यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क बिफोर द डेडलाइन, और आप कर भी पाओगे. पर दिन रात एक आपको करना पड़ रहा है. सैटर्न वही है, रात का ग्रह, इवनिंग के बाद का ग्रह, तो इवनिंग के बाद भी आपको काम करना पड़ रहा है. वर्क पर आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहने वाले हो इन दिस 4th quarter और द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2024. वर्क पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहोगे, करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहोगे. परफेक्शनिस्ट नज़र आ रहे हो अपने करियर के लिए. Then we have rejection. It says that you are also, your ideas, your creative ideas or your work can be rejected by others. क्योंकि कहीं ना कहीं लोग आपको देखते हैं कि आप और परफेक्शन से काम कर सकते हो, या वो देखते हैं कि आपके अंदर और कैलिबर है और वो आपका कैलिबर देखना चाहते हैं, वो आपका और परफेक्शन वाला काम देखना चाहते हैं. इस वजह से आपके जो काम है वो रिजेक्ट करें. आपको दूसरों से डांट सुनने को मिल सकती है इन द नेक्स्ट 3 months. बट इट्स ऑल्सो गोना मेक यू वर्क अ लॉट हार्ड एंड आपका जो एक क्वालिटी वर्क है वो निकल कर आएगा फिर. बट क्वालिटी की यहाँ पर बात है, क्वांटिटी की बात नहीं है. सो क्वालिटी ऑफ वर्क करना ज़रूरी है. एंड रिजेक्शन यही है कि यू मे फेस क्रिटिसिज्म एट योर वर्क प्लेस. यू मे फील लाइक दैट योर बॉसेस एंड योर कोवर्कर्स आर टू डायरेक्ट, आर टू रूड. ऑलराइट, बट जो भी एंड रिजल्ट है, एंड रिजल्ट इट सीम्स टू बी समथिंग जो दूसरों को बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा. आपको लगेगा कि ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये चीज़ मैं क्रिएट कर सकता हूँ या मैं इन्वेंट कर सकती हूँ. पर आपकी क्रिएटिविटी बेस्ट निकल कर आती है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में. देयर इज़ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एज वेल. वैसे आई एम नॉट समवन जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में ज़्यादा बिलीव करता है. क्रिटिसिज्म इज़ क्रिटिसिज्म, ऑलरेडी इट्स अ नेगेटिव थिंग.
बट आई फील दैट विद द कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आप कहीं ना कहीं आपका वर्क जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, आप परफेक्शन के साथ काम करते हो, आप कोई ऐसी चीज़, वैल्यूएबल चीज़ दूसरों के सामने लेकर आते हो अपने करियर में जो दूसरा देखकर हैरान होता है, और पीपल वुड वांट टू अगेन वर्क विद यू, दैट आई सी आफ्टर डूइंग दिस परफेक्ट वर्क. देन वी हैव ग्रोथ. सो यस, ग्रोथ का कार्ड यहाँ पर यही शो कर रहा है कि यू विल ग्रो इन योर करियर ट्रिमेंडसली इन द कमिंग फ्यू मंथ्स. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में यू विल सी दैट ग्राफ गोइंग अप. आपकी ग्रोथ का ग्राफ अप जाएगा. एंड जैसे यहाँ एमरजेंसी रूम बना हुआ है, सो इट डज शो कि जब सिचुएशंस आपके कंट्रोल में नहीं है ना, जब 8th हाउस वाली सिचुएशन, इट कैन इवन हैपन कि आप अपने चरा दशा में 8th हाउस की दशा रन करो. लेट्स से और वर्गो राइजिंग, तो एरीज साइन जो है, एरीज साइन 8th हाउस में होता है, तो एरीज साइन की दशा आप चरा दशा में रन करो, या फिर अपने विंशोत्तरी दशा में, विंशोत्तरी दशा इज अगेन अ प्लानेटरी टाइम साइकिल, तो विंशोत्तरी दशा में आप मार्स की दशा रन करो, क्योंकि मार्स अगेन आपका एरीज साइन रूल करता है, एरीज 8th हाउस में. फिर इफ़ यू आर ए टॉरस असेंडेंट पर्सन, तो सेजिटेरियस साइन जो है वो 8th हाउस में होगा, तो जुपिटर की अंतरदशा, महादशा आप रन करो, तो 8th हाउस की दशा आप रन कर सकते हो, जो कि आपको ट्रांसफॉर्म करेगी, जो ऐसी सिचुएशंस लेकर आ सकती है आपकी लाइफ में जो अनएक्सपेक्टेड हो, बट उन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में यू विल ग्रो. यही चीज़ इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्लानेटरी प्लेसमेंट यू हैव, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आप ये चीज़ देखोगे कि करियर में इमरजेंसी से डील करना पड़ेगा आपको, दूसरों की इमरजेंसी से अपने करियर में डील करना पड़ेगा, और उस इमरजेंसी सिचुएशंस में आप ग्रो करोगे. उस इमरजेंसी सिचुएशन में जो आपको आइडिया आता है, वो थॉट आता है, वो आपको हेल्प करता है ग्रो करने के लिए. तो जो जितना आप इनफैक्ट अगेन जितना आप स्पॉन्टेनियस रहते हो अपने करियर में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, उतना आप जो हो करियर में ग्रो कर पाओगे. आपके पास सडनली न्यू आइडियाज़ आ सकते हैं जिसका कोई सिर पैर ना हो, कभी आपने वो आइडिया सोचे ना हो, बट सडनली वो आइडियाज़ आपको आए, और जब आप उन आइडियाज़ पर को इम्प्लीमेंट करते हो प्रैक्टिकल रियलिटी में, स्पेशली अपने करियर में, तो आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखते हो अपने करियर में. ये चीज़ होती हुई नज़र आ रही है. लेट्स पुल सम स्पेसिफिक कार्ड्स अबाउट योर करियर, अबाउट योर एजुकेशन, जॉब, बिजनेस, जिस भी स्टेज ऑफ लाइफ पर आप हो, वो करियर जो है वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कैसा जा रहा है. ओके, वी ऑलरेडी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स. पेज ऑफ वॉन्ड्स हेयर शोज दैट यू आर डूइंग मल्टीटास्किंग. इट शोज दैट यू आर बीइंग एक्सट्रीमली क्रिएटिव इन योर करियर. इट शोज दैट यू हैव दिस चाइल्ड लाइक एनर्जी, दिस enthusiasm in you to work, to create something new, to realize some new things. Alright, आपका जो नज़रिया है देखने का, वो दूसरों के नज़रिए से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा यूनिक है. जैसे बच्चा हर चीज़ को बड़े ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टेड वे से देखता है, उसी तरह आप हर एक चीज़ को बड़ा परखते हो, ध्यान से देखते हो, और कुछ नई चीज़ इन्वेंट करते हो इनफैक्ट, जो दूसरों को बहुत अच्छा लगता है, जो दूसरे को बहुत टेस्टफुल लगता है. Page is again a childlike energy, so you have that childlike energy within you. You will feel more energetic in the month of October, November, December, specifically in terms of career. आपके अंदर एक enthusiasm, एक happiness ज़रूर है, creativity आपके अंदर ज़रूर है. अगर आप education में, तो you will notice कि education में आपके जो professors हैं या classmates हैं, वो आपके साथ, especially professor जो है, वो आपके साथ काफ़ी ज़्यादा strict हो सकते हैं, and you feel like that you are the child again, so you do your best in whatever you are doing. अगर आप जॉब में हो, तो जॉब में आपको लगता है जो आपको बॉसेस है वो आपके प्रोफेसर्स हैं, और आप फिर से एक बच्चे बन चुके हो, तो आप उनका क्रिटिसिज्म फेस करते हो, बट एट द सेम टाइम यू लर्न समथिंग न्यू, यू गेट टू नो समथिंग न्यू अबाउट योर करियर, अबाउट योर प्रोफेशन, यू बिकम अ परफेक्शनिस्ट. कई चीज़ें हमें बुक्स नहीं सिखा सकती, वो हम अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं. तो वही सीख आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में मिलती है, और उस सीख से जो चीज़ आप क्रिएट करते हो वो बड़ी वैल्यूएबल है. अगर आप बिजनेस में हो, तो बिजनेस में यहाँ नज़र आ रहा है कि आप खुद को क्रिटिसाइज कर सकते हो कि ये क्या चीज़ है, ये कैसी चीज़ है. क्लाइंट से आपको एक नेगेटिव फीडबैक मिल सकता है, और उसके बाद जो आप अपनी क्रिएटिविटी शो करते हो, तो क्लाइंट्स आपकी बहुत तारीफ़ भी करते हैं, जिससे आप अपना करियर, जिससे आप अपना बिजनेस बहुत सारी जगह स्प्रेड कर पाते हो. इट्स अ लर्निंग टाइम, इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर यू. पेज चाइल्ड लाइक एनर्जी, बच्चा बहुत कुछ सीखता है, तो सीखने वाली एनर्जी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में करियर में नज़र आ रही है. एट द सेम टाइम इंथुजियाज़म, खुशी कम नहीं कर पा रही है क्रिटिसिज्म आपका, और आप अपना 100% दे पा रहे हो करियर में, स्टिल कंप्लीट कर पा रहे हो डेडलाइंस. तो
ये नज़र आ रहा है। अबाउट फाइनेंसेस, अगर आप खुद अर्न करते हो तो ये आपके मनी फाइनेंसेस, अगर आप खुद अर्न नहीं करते तो जो परिवार में आपके अर्न करते हैं मनी, उनका फाइनेंस है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून शो करता है अनएक्सपेक्टेड इनकम आना, अनएक्सपेक्टेड मनी आना, अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज ऑफ मनी बनना, ये व्हील ऑफ फॉर्चून शो कर रहा है। इट शोज़ दैट यू हैव गुड अमाउंट ऑफ मनी विद योर सेल्फ। इट शोज़ कि आप अपना मनी किन्हीं जगहों पर स्प्रेड कर रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हो, कुछ अपने IPO या स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, या किसी और चीज़ में, गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ में आप अपना मनी इन्वेस्ट कर रहे हो। आप अपने कपड़ों में भी अपना मनी इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि कपड़े आपको और प्रेजेंटेबल लुक देते हैं। आप अपने ऊपर भी ये पैसे खर्च कर रहे हो, बट डिफरेंट जगहों पर आप अपना मनी इन्वेस्ट कर रहे हो, सेव कर रहे हो, ये नज़र आ रहा है। मनी बहुत सारी तरफ जा रहा है और मनी का फ्लो बना हुआ है ऐसी, एक मनी का फ्लो, और कैश फ्लो होना ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ मनी को ऐसे बैंक में रखोगे तो मनी ग्रो नहीं कर पाएगा, बट जितना मनी आप इन्वेस्ट करते हो, डोनेट करते हो, अपने ऊपर खर्चते हो, परिवार पर खर्चते हो, खाने पर खर्चते हो, वो मनी उससे भी ज़्यादा आपके पास वापस आता है, क्योंकि आप कैश फ्लो कर रहे हो, कैश का एक ऐसा फ्लो बना रहे हो। यू कैन हैव इन द सेकेंड हाउस ऑफ मनी वेल्थ, इन द सेकेंड हाउस ऑफ योर जॉइंट एसेट्स यू कैन हैव पाइसीज साइन। पाइसीज एक्सपेंडिचर का साइन है। सेकेंड लॉर्ड कैन बी इन द 12th हाउस। 12th हाउस भी एक्सपेंडिचर डोनेशंस का है, पाइसिस भी एक्सपेंडिचर और डोनेशन को शो करता है। तो सेकेंड हाउस जो है समहाउ पाइसिस साइन से कनेक्टेड होगा, यानी सेकेंड लॉर्ड कैन बी इन पाइसिस, या सेकेंड लॉर्ड कैन बी इन द 12th हाउस, या फिर सेकेंड हाउस में भी सेकेंड हाउस में ही पाइसिस साइन प्लेज है, यानी और एन एक्वेरियस राइजिंग। या जो 11th हाउस होता है वो भी अगेन हमारी इनकम को शो करता है थ्रू आवर करियर। तो इनकम 11th हाउस में पाइसिस साइन प्लेज है, 11th लॉर्ड जो है 12th हाउस में, 11th लॉर्ड जो है पाइसिस साइन में प्लेस हो। ऐसी एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट आपके चार्ट में ज़रूर होगी। बट जितना मनी खर्च करते हो, जितना आप मनी इन्वेस्ट करते हो, जितना आप मनी दान में देते हो, उतना आपके पास, उससे भी ज़्यादा आपके पास मनी वापस ज़रूर आएगा। कैश फ्लो करना ज़रूरी है। आप अगर दबा के बैठे रहोगे पैसे तो कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इनफैक्ट कैश फ्लो नज़र आ रहा है। यू आर डूइंग, यू आर स्पेंडिंग मनी, यू आर डोनेटिंग मनी, यू आर इन्वेस्टिंग मनी, ये सब आप करते हुए नज़र आ रहे हो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मंथ्स में। सो दैट्स एक्चुअली अ गुड थिंग। इससे आपका मनी और इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है। देन वी हैव द 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में आ रहा है, आपके रिलेशनशिप्स के बारे में आ रहा है। सो 10 ऑफ कप्स इज सच अ ब्यूटिफुल कार्ड। वी कैन ऑलरेडी सी इट सच अ ब्यूटिफुल कार्ड। इट शोज इमोशनल सेटिस्फैक्शन, इट शोज फैमिली, इट शोज सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली। तो परिवार का जो माहौल है आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। परिवार का जो आपके पेरेंट्स है, जो आपके सिबलिंग्स है, वो आपको लेके बहुत पॉजिटिव है, सपोर्टिव है। यू विल ऑल्सो सपोर्ट योर फैमिली एंड योर सिबलिंग, योर पेरेंट्स विल नोटिस कि दे विल टेक केयर ऑफ यू, यू आर ऑल्सो गोना टेक केयर ऑफ देम। आप अपने चिल्ड्रन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। इफ़ यू वांट टू कंसीव देन येस, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो 3 महीने 2024 के आप कंसीव कर सकते हो इस टाइम पीरियड पर। चाइल्ड बर्थ इन योर फैमिली कैन हैपन, पाइल नंबर 3। ऑल्सो 10 ऑफ कप शोज कि बहुत अच्छा रिलेशन होना परिवार के साथ। इफ़ यू आर समवन जिसका रिलेशनशिप अच्छा नहीं था परिवार के साथ, यू हैड अ कार्मिक रिलेशनशिप विद योर मदर और फादर, तो समहाउ उन मदर फादर के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव करेगा। वो आपको ट्रबल नहीं करेंगे, आपको वो कार्मिक रिलेशनशिप फील नहीं होगा। अगर ऑलरेडी आपका रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा है तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा आपका रिलेशनशिप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। पेरेंट्स, फैमिली के थ्रू बहुत ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पर आपको फील होगा। इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड और इफ यू आर ऑलरेडी इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, सो यू विल नोटिस दैट योर पार्टनर, दैट you guys can take this relationship to the next step. Your person can give you commitment, your person can propose to you about marriage. And 10 of cups show करता है that if you are already married or in a relationship, you may start to think about your future family, you start to do family planning. ऑल राइट, रिलेशनशिप आप एक दूसरे से या आप और आपके पार्टनर इमोशनली ऑन द सेम पेज है, इमोशनली एक दूसरे के लिए अवेलेबल है, क्योंकि कप्स की एनर्जी वाटर एलिमेंट है, इमोशन का एलिमेंट है। तो इमोशनली यू गाइज आर टुगेदर, इमोशनली यू गाइज आर ऑन द सेम पेज, ये यहाँ नज़र आ रहा है। And if you are not in a romantic relationship, if you are not married, then you can definitely come in a romantic relationship if you want to. आप अपनी तरफ एक ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट करो जो बहुत फैमिली ओरिएंटेड होंगे, जो अपने परिवार से बहुत कनेक्टेड होंगे, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करेंगे। They are going to be very proud of their family, of their ancestry. This person is also going to be someone who is emotionally available for you. This person is going to be someone जो एक परिवार चाहता है आपके लिए, आपके साथ, और ये पर्सन पास टाइम नहीं करना चाहता आपके साथ। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू गेट टू नो यू एंड वॉन्ट टू गेट इन अ रिलेशनशिप विद यू
मैरिज को माइंड में रखते हुए ये सब चीज़ें वो आपके साथ करना चाहेंगे। 10 ऑफ कप्स ये शो करता है दैट दिस पर्सन इज गोना बी इन अ मैरिजेबल एज, और दिस पर्सन विल थिंक अ लॉट अबाउट मैरिज. इफ यू आर समवन हु इज अ टीनेजर वाचिंग दिस रीडिंग, देन इट कैन हैपन दैट यू मे कम इन अ रिलेशनशिप विद समवन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जिस पर्सन के साथ फ्यूचर में आप मैरिज भी कर पाओगे. ये पर्सन मैरिज को ध्यान में रखते हुए आपके साथ रिलेशनशिप में आएंगे. तो ऐसे पर्सन को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करो. इस पर्सन के चार्ट में कैंसर साइन, इवन पाइसिस साइन प्रोमिनेंट होगा. कैंसर या पाइसिस में प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होंगे इस पर्सन के. सन मून राइजिंग आत्माकार का कैंसर या पाइसिस साइन में प्लेस्ड हो इस पर्सन का. ऑल राइट, देन अबाउट योर money, sorry, not money, I wanted to say about your health. तो हेल्थ के बारे में यहाँ क्या इन्फॉर्मेशन है. पाइल नंबर 3 की हेल्थ, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. So we have the 3 of wands. 3 of wands here is giving me the message that pile number 3 3 of wands, that you are having a good time. It shows that you're thinking about your future. I feel कि जैसे कई बार हमें ऐसा हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है ना कि भाई हमें ईयरफोन नहीं लगाने चाहिए, स्पेशली जो वायरलेस ईयरफोन्स हैं. अगर वो वायरलेस ईयरफोन्स हम अपने लगाएंगे तो हमारी सुनने की शक्ति कम हो जाएगी. अगर हम सिंपल नॉर्मल ईयरफोन भी लगाएंगे उससे भी कम हो जाती है सुनने की शक्ति, क्योंकि आखिर में कान के अंदर जाके वो जो है ईयरफोन बैठता है, तभी हम ईजिली सुन पाते हैं, राइट. सो ये चीज़ें, ये टेक्नोलॉजी जो है ईयरफोन वाली टेक्नोलॉजी हमारी हियरिंग को इम्पैक्ट करती है. सो 3 ऑफ वांड शो करता है फ्यूचर के लिए प्लान करना. तो कहीं ना कहीं आप अपने फ्यूचर में चाहोगे कि आप हेल्दी रहो, तो कुछ ऐसी जो अनहेल्दी हैबिट्स है आप उसको छोड़ने का सोचोगे. इस वजह से इस तरफ एफर्ट डालोगे. मे बी यू स्टॉप यूजिंग योर ईयरफोन्स एट, मतलब आई पर्सनली अगेन आई एम समवन जो मुझे आई थिंक 1 ईयर हो चुका है, शायद इससे भी ज़्यादा, कि मैंने ईयरफोन लगाना, चाहे वो वायर वाला ईयरफोन हो, चाहे वो जो दूसरे जो ईयरफोन होते हैं ब्लूटूथ वाले, वो मैंने बंद कर दिया लगाने. बिकॉज व्हेन आई गॉट टू नो कि ऐसे कान खराब हो जाते हैं, सुनना बंद हो जाता है, तो आई वाज लाइक आई डोंट वांट टू गो थ्रू दिस इन फ्यूचर. सो आई स्टॉप्ड यूजिंग ईयरफोन्स एट ऑल. सो जब भी मुझे म्यूज़िक सुनना होता है तो मैं गाड़ी में सुन लेती हूँ, या फिर आई डोंट, अगेन आई एम नॉट समवन जो म्यूज़िक बहुत ज़्यादा सुनता है. सो या ऐसे वो शौक़ ख़त्म कर दो भाई जो आपके शरीर को ख़राब कर सकते हैं. वैसे शौक़ कोई काम के हैं भी नहीं. सो समहाउ यू स्टार्ट टू थिंक अबाउट योर फ्यूचर में कैसे अच्छी हेल्थ हम रख सकते हैं. ऑलराइट, तो मे यू स्टॉप यूजिंग प्रोडक्ट्स विच हैव पाम ऑयल. एवरीथिंग इन द मार्केट, वेदर इट्स चिप्स, वेदर इट्स बिस्किट्स, वेदर इट्स सम spread like Nutella, everything has palm oil in it. So somehow you stop these things, क्योंकि आपकी हेल्थ को बहुत बैडली इफेक्ट करते हैं. तो ऐसे आप अपनी डाइट को प्लान करो जहाँ पर आप पाम ऑयल या एक्स्ट्रा ये जो चीज़ें होती है प्रिजर्वेटिव वाली वो ऐड ही ना करो. प्रोसेस्ड फूड आप ख़त्म करो, क्योंकि आप फ्यूचर में एक हेल्दी लिविंग चाहते हो. ये 3 ऑफ वांड्स फ्यूचर के बारे में शो करता है, फ्यूचर प्लानिंग. तो आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में या ऐसी हैबिट्स अपने अंदर डाल रहे हो जो हैबिट्स आपको फ्यूचर में एक हेल्दी लाइफ देती हैं. पास्ट जो हो गया सो हो गया, प्रेजेंट जो है हम उसको बेटर करने में लगे. और हम ये भी चाहेंगे कि हमारा फ्यूचर अच्छा हो. तो फ्यूचर कैसे अच्छा होगा? जब हमारा प्रेजेंट में अच्छा लाइफस्टाइल होगा. तो आप इस पर फोकस करते हो, आप अपने गुड लाइफस्टाइल, अपने खाने पीने पर बहुत अच्छा फोकस डालते हो, और आपका इस वजह से फिजिकल और मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा रहता है. बट आप बहुत कैलकुलेटिव नज़र आ रहे हो, जो भी खाना आप खा रहे हो बहुत कैलकुलेटिव नज़र आ रहे हो विद द 3 ऑफ वांड्स. बहुत सोच समझ के खाना खा रहे हो. इवन दो अक्टूबर का मंथ इज़ ऑल अबाउट फेस्टिविटीज़, ऑल अबाउट फेस्टिवल. सो मीठा खाना कॉमन हो जाएगा अक्टूबर के मंथ में. अभी दिवाली आने पर, नवरात्रि आने पर कुछ ना कुछ मीठा या तला हुआ बहुत कॉमन हो जाएगा हर किसी के लिए. बट यू विल ट्राई टू कंट्रोल योर सेल्फ. यू सीम टू बी वेरी सीरियस अबाउट योर डाइट. तो ऐसा आप करते हुए नज़र आ रहे हो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के मंथ्स में. हेल्दी फ्यूचर चाहते हो, इस वजह से अपने प्रेजेंट को, खाने को, लाइफस्टाइल को हेल्दी करने में लगे हो. ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर और क्या इंफॉर्मेशन है अबाउट दी
last quarter of 2024 for pile number 3. So we have ceremony, it says invocation. So as I've told you, October month is all about festivities. Festivals are there, Diwali are there, Dhanteras are there, Navratri are there, all these things are there. Even December may we have Christmas, we have New Year. November may it can happen, pile number 3 you have your birthday or someone else's birthday is coming in the month of November. मतलब October, November, December ceremonies, festivities वाला है आपके लिए. आपके परिवार में किसी का मैरिज हो सकता है, फ्रेंड सर्कल में किसी का मैरिज हो सकता है, वो आप अटेंड कर रहे हो. कोई रिलीजियस सेरेमनीज आप अटेंड कर रहे हो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में. कोई बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरीज आप अटेंड कर रहे हो. तो सेलिब्रेटरी माहौल है आपके लिए तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तीनों महीनों का. तो आप बहुत इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो, बट एट द सेम टाइम अपनी डाइट को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो. यू विल हैव चीट डेज फॉर श्योर जहाँ पर आप अपने मन पसंदीदा चीज़ें खाते हो, बट बाकी दिन आप बहुत स्ट्रिक्ट रहते हुए नज़र आ रहे हो अपने डाइट पर, अपने लाइफस्टाइल पर. बट या यू सीम टू बी वेरी बिजी इन सम सेरेमनीज, in some religious ceremonies or rituals. You seem to be busy. कुछ celebrations और तीनों महीनों में हो रही है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, जिसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट ज़रूर है. ऑलराइट, सो ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही है इन द नेक्स्ट 3 months, और आई शुड से द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2024 ऐसा जाता हुआ नज़र आ रहा है. एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो साइन ऑफ जेमिनी, साइन ऑफ वर्गो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, दीज सीम्स टू बी प्रोमिनेंट. यानी इन साइंस में प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होंगे. तो जेमिनी में वी हैव द नक्षत्र ऑफ मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु. वर्गो में उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा. फिर स्कॉर्पियो में वी हैव विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा. एक्वेरियस में वी हैव धनिष्ठा, सतभिषाक एंड पूर्व भद्रवदा. तो इन साइंस एंड नक्षत्रास में सन, मून, राइजिंग, आत्माकार का, सेनेड लॉर्ड या फिर कोई और प्लैनेट ज़रूर प्लेस हो गए इन द D1, D12 या D9 नवांश चार्ट में. एंड ऑल्सो आपका आत्माकार का प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज नियरेस्ट टू द 30 degrees कैन बी वीनस और कैन बी मून और इट कैन ऑल्सो बी मर्क्यूरी. Alright, so ये भी है indication है. So yeah, that was it. This was the reading. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundali reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade cleansed energized by me. You can get these bracelet sets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.